Good evening, everyone. I will start sharp at 5:05. Okay, so I think I should start now. Most of the people have joined. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay. So, just a quick recap whatever we have done yesterday. We have seen what is solute, what is solvent. Okay. Then we have also seen the different types of solution, that is gas plus solid, kind of nine different types of solutions we have seen. After that, we have seen what is saturation, what is unsaturation, and what is super saturation. अभी ऑर्गेनिक वाले सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना. ऑर्गेनिक में सैचुरेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड. दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज फिजिकल. So your unsaturation is with respect to the solubility. So please don't get confused into that. After that, we have also seen what is dissolution. कल बताया था मैंने आपको. And what is crystallization. Correct? So these two terms we have seen yesterday. Also, we have started with the factors affecting the solubility. In that first one, we have seen nature of solute plus solvent. So solute should be polar and solvent should be polar. It will get dissolved very easily. If both the things are non-polar, it will get dissolved very easily. पोलर कैन नॉट बी डिजोल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर कैन नॉट बी डिजोल्व इन पोलर. ये आपको कल बताया था. व्हाट इज पोलैरिटी एंड एवरीथिंग, चार्ज सेपरेशन, वो सब आई होप आपको याद होगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सीन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ तक हो गया था कल अपना. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस solubility increases with increase in the temperature. ठीक है. बट मैंने कुछ कंपाउंड्स के नाम बताए थे कल आपको, which was NaCl, KCl, etc. In these cases, their solubility does not affect so much. ठीक है. There is no appreciable change in the solubility. But if we'll talk about the compounds such as NaNO3 or KNO3, in these cases, their solubility increases appreciably with increase in the temperature. तो ये ध्यान में रखना है. And there was only one compound जिसका आपने आंसर भी दिया था कल, that is sodium sulfate. In this case, solubility decreases with increase in the temperature. तो ये सारे changes क्यों होते हैं? Due to exothermic and endothermic processes. Exo means when the heat is evolved, endo means when the heat is absorbed. Okay, so till that we have completed the part. Okay, now I'm going to start with the third factor, that is the effect of, एक मिनट देखने तो जरा क्या है. हाँ, effect of pressure. Okay, and solubility का already I have told you. अगर oxygen पानी में dissolve नहीं होगा तो yesterday we have seen BOD will increase, COD will increase, DO will decrease. BOD is biological oxygen demand, COD is chemical oxygen demand, DO is dissolved oxygen. So it will affect drastically if amount of oxygen is lesser in the water, क्योंकि ये non polar है, water is polar. तो ये कल मैंने आपको बताया था. Already I have told you, question एक बार पूछा था 12th exam में, why aquatic animals prefer to stay at the bottom of the sea during the summer season. तो क्या बताया था मैंने रीजन आपको? Because in the summer season the amount of heat is more at the top of the river. Correct? So what will happen? Because of that hot water, oxygen is not there into the water. तो वो क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं नीचे जाना. ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पर होता है. तो गर्म पानी में हमेशा ऑक्सीजन कम होता है कंपेयर टू ठंडे पानी में. ठीक है. अब हम आज पढ़ेंगे एक नया फैक्टर विच इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है. अब सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए.
will the pressure affect the solubility of solid into liquid? Will it affect? अगर मैंने solid लिया और उसको liquid में dissolve किया, Yes. suppose I will take NaCl and I will dissolve it into the water. Will the pressure plays any role in this case? Pressure कुछ role करेगा play या Miss, I नहीं guess करेगा? no. No, miss. नहीं ना? बाकी के लोगों No, को क्या ma'am. लगता है? ओके No, क्यों no, नहीं? no, Oh, miss. ma'am. क्यों लेकिन? क्यों? Why? वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं. Very good, perfect answer. Because it is incompressible. Because we are talking in terms of solids and liquids. So your solute is solid, which is incompressible. So जब भी आपका solid liquid में dissolve होता है, that time pressure does not play any role. ये याद रखना. So there is no effect of pressure on the solubility of solid into the liquid. ठीक है? But अभी मैं statement change करती हूँ. When the gases are getting dissolved into the liquid, will pressure play any role? Yes or no? If Yes, gases miss. are dissolved into the liquid, will pressure play any role? Yes or no? Yes. You can give your answers in the Yes, chat box. ma'am. No problem. Yes, Okay. ma'am. Yes, very good. Because your gases are highly compressible. अभी हवा में ऑक्सीजन है ना? तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगी कि चलो ऑक्सीजन come here and dissolve into the water. No, what I have to do here, I have to apply more amount of pressure on the gas. फिर जब आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, it will convert into the form of liquid. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? When the gases are converted into the liquid, that pressure is called that change is called as, बोलो, compression ना? compression बोलते हैं कि नहीं? When gases are converted into the liquid, it is called as compression. So what will happen? You have to apply the large amount of pressure on the gases. It will convert into the liquid state and then you can dissolve it into the solvent. ऐसे gas को directly dissolve नहीं कर सकते हैं. You have to first convert it in the form of liquid. ठीक है? अब देखो, आपने already देखा होगा carbonated soft drinks in which carbon dioxide is in the gaseous state. It is first liquefied. ठीक है? This gas is easily liquefiable. Then you are going to apply the large amount of pressure. It will get converted in the form of liquid. और फिर उसको पानी में हम dissolve कर देते हैं. So which gas it will form? It will form carbonic acid. ठीक है? Which is in the liquid state. तो जैसे ही आप सोडा बॉटल ओपन करते हो, large amount of effervescence will come out. ठीक है? So that is because of this excess amount of carbon dioxide. क्योंकि गैस को आपने बंद करके रखा है, एकदम प्रेशराइज्ड करके आपने उसको बंद करके रखा है, करेक्ट? तो जैसे ही आपने उसका ढक्कन खोला, सारी गैस बाहर आने की कोशिश करती है. सो दैट इज कॉल्ड एज इजीली लिक्विफेबल. अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की पानी में डिसॉल्व करने मिस, वो की, झाग तो आता है वो वही होता है ऑक्सीजन ना? यस यस यस, जो एफरवेसेंस आता है ना, जो क्या बुड़बुड़ा, झाग नहीं रे, बुड़बुड़ा वो आता है ना, पूरा खोलते हैं. हाँ मिस. ठीक है? that is called as effervescence. So that is because of excess amount of carbon dioxide. उसको हम लोगों ने प्रेशराइज करके रखा है ना. देखो, जब आप बहुत ज्यादा बॉटल हिला भी देते हो, कभी भी ओपन किया तो बहुत ज्यादा बाहर आता है effervescence. That is because of excess amount of carbon dioxide. ठीक है? बट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करने की, तो दिस ऑक्सीजन इज नॉट इजीली लिक्विफिएबल. इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द ऑक्सीजन इनटू द लिक्विड स्टेट. इसीलिए ऑक्सीजन का पानी में डिसोल्यूशन काफी कम होता है. ठीक है? इतना समझ आ गया? तो बेसिकली क्या बोला मैंने? इफ यू वांट टू डिसॉल्व सॉलिड इनटू द लिक्विड, pressure does not play any role. But if you want to dissolve gas into the liquid, pressure plays a very important role. अब मुझे बताओ कि solubility is directly proportional to the pressure or inversely proportional to the pressure. क्या लगता है? क्वेश्चन समझ आ गया? वापस से रिपीट करती हूँ. देखो, व्हाट आई सेड, व्हेन solids are getting dissolved into the liquid, that time pressure does not play any role. क्योंकि आपने ही मुझे बताया कि in that case your solids are incompressible. तो आप उसको किसी और स्टेट में बहुत इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते. Yes, very good, perfect. Now here in the case of gases into the liquid, solubility is directly proportional to the pressure. जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा वो लिक्विड हो जाएगा, उतना ज्यादा वो डिसॉल्व हो जाएगा. समझा? तो solubility is directly proportional to the pressure. So can I say
As the pressure increases, solubility also increases. ये part सबको समझ आ गया अच्छे से? Any question in Yes. this? Any questions in this? अब देखो, एक बंदा था, शायद आपको पता होगा, ली चार्टिलियर, करेक्ट? ली चार्टिलियर्स Yes. प्रिंसिपल क्या था? He said that pressure and temperature cannot go simultaneously. ठीक है? Pressure and temperature cannot go simultaneously. मतलब in the case of gases, हाँ, मतलब उसने क्या बोला, अगर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर आपको ऑटोमेटिकली कम रखना है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर आपको ऑटोमेटिकली कम रखना है. इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज एक सिलेंडर है या फिर एक कोई भी चीज है, इसके अंदर मैंने लिक्विड ले लिया या फिर गैस ले लिया, ठीक है? आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर, मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर यू आर गोइंग टू अप्लाई. तो ये जो गैस थी किस में कन्वर्ट हो गई? इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अब अगर मैंने इसको सील भी कर रखा है और नीचे से अगर मैंने टेम्परेचर भी चालू किया तो क्या आएगा? गैसेस विल मूव रैंडमली इन योर सिलेंडर, और वो क्या करेगी? आपके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी. इट विल ट्राई टू कम आउट. तो आपका जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट ही हो जाएगा. Correct? So care has to be taken that if the pressure is very much, temperature has to be very very low. और अगर आपने इसका ढक्कन खोल दिया, उसके बाद अगर आप गैस को हीट कर रहे हो, that time it is fine because gases can move anywhere. तो random motion होगा, it can come out. आई बात समझ में? So that was the Lee Chatillier's principle. What he said, pressure and temperature will not go simultaneously. लेकिन एक वक्त आता है जिसके बाद आपका ग्राफ है ना solubility का, ऐसे जाके फिर स्ट्रेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम प्रेशर डज नॉट प्ले एनी रोल इनटू द सॉलिबिलिटी, क्योंकि जितना गैस था डिसॉल्व भी हो गया ना, तो अब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो ऐसे ही रहने वाला है. सो आफ्टर सम टाइम द ग्राफ इज लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस सॉलिबिलिटी. ठीक है? तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, ऐसे बाद में आगे जाके सीधा सीधा हो जाता है. व्हाई? बिकॉज आफ्टर सम टाइम the pressure will also not play any important role into the solubility of the gases. क्यों ऐसे? क्योंकि जितनी गैस थी भाई वो सारी की सारी डिसॉल्व हो गई. अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रेशर अप्लाई करने की, और अगर मैंने प्रेशर अप्लाई भी किया तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. समझ आ गया सबको अच्छे से? so that is the Lee Chatillier's principle. Is it very clear to everyone? Any questions till now? हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन किसने डाला है मुझे चैट बॉक्स में? मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होगा. यस, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर लोअर. मतलब उसको गैस का अरेंजमेंट, सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको ऐसे करना है कि अगर आपने प्रेशर ज्यादा रखा तो आप वहां पर टेम्परेचर कम करोगे. ठीक है? देखो ना, लेबोरेटरीज में भी जब हम सिलेंडर्स रखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ना, अवे फ्रॉम द हीट, अवे फ्रॉम दैट बर्नर, उन सबसे दूर रखना होता है. क्योंकि चांसेस क्या होंगे, अगर गैसेस रैंडम मोशन में गई तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ ब्लास्ट आल्सो. समझा? दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक केयर. Okay, any other questions? Give me a quick yes into the chat Always. box. Is it very clear? Okay, चलो ठीक है. आप लोग मुझे ऐसे रिप्लाई करोगे ना तो मुझे भी समझेगा. चलो अभी नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट. अब ये जो ओके ओके बच्चों, थैंक यू. चलो ठीक है. अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये जो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन है, दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दैट वाज गिवन बाय वन साइंटिस्ट. हिज नेम वाज हेनरी. एक सेकेंड ना. His name was Henry, and that law is called as Henry's law. ठीक है? Just give me a second. We will study now what is Henry's law. ठीक है? ये जो फर्स्ट जो हमने अभी बोला कि solubility is directly proportional to the pressure, that was first demonstrated by scientist called as Henry. उसने क्या किया experiment? He was what he has done, he has taken one, ऐसे एक बर्तन ले लिया, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है? इन दैट ही हैज टेकन सम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. एक और लिया उसने, यहाँ पे भी क्या ले लिया? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. ठीक है? इसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सील किया और इसको थोड़ा सा कम, या फिर इसको खुला रखा. तो व्हाट ही हैज ऑब्जर्व, जितना प्रेशर था ना उसके अंदर उतनी ज्यादा गैस थी, और जब ये खुला हुआ था तो गैस कम थी. ठीक है? तो ये कंक्लूडेड दैट solubility is directly proportional to the pressure. ठीक है? आपने देखा होगा when we'll bring the carbonated soft drink, just a minute हाँ बच्चों, एक सेकंड.
Okay, so we have seen whenever we are having carbonated soft drink, आप कोका कोला मिरिंडा ये सब लेके आते हो, if you are going to keep it in the refrigerator, तो उसमें काफी ज्यादा गैस होती है, करेक्ट? आप जब ओपन करते हो तो इट इज इन द मोर अमाउंट, करेक्ट? बट इफ यू आर गोइंग टू कीप योर कोल्ड ड्रिंक फॉर अ लॉन्गर टाइम एट द रूम टेम्परेचर और बॉटल को खुला रख दिया, तो उसके बाद अपने को ऐसा लगता है ये तो मैं शुगर सिरप पी रही हूँ, ठीक है? दैट इज बिकॉज ऑल द गैसेज हैज बीन इवॉल्व, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं था। तो हेनरी ने क्या कंक्लूड किया? solubility is directly proportional to the pressure. ठीक है? तो what is the law? The law states that solubility of the gas into the liquid is directly proportional to the pressure. इतना समझ का आ गया सबको? अब हेनरी के इसके ऊपर ना हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो हम बाद में करेंगे। So S is equals to KH into P. So what is this KH? KH is called as proportionality sign. Yes, it is called as proportionality sign, and it is also called as Henry's constant, क्योंकि constant दिया किसने था? हेनरी ने। So it is called as Henry's constant. ठीक है? There is one question, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा प्रेशर लगता है क्या? प्रेशर नहीं लगता, बट आप उस बॉटल को अच्छे से सील करके रखते हो, जितना कोल्ड कंडीशन होगा अमाउंट ऑफ गैस विल बी मोर। अगर ज्यादा आप हीट करोगे तो गैसेस रैंडम मोशन में होती है ना, गैसेस फैलती है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर उसको रखेंगे तो गैसेस एक्सपांड होती है, ठीक है? आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो गैसेस कंप्रेस्ड हो जाती है थोड़ी। आया समझ में कन्हैया? डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप आई हैव आंसर्ड। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अभी ये आपका ना बच्चों न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। दे विल गिव यू हेनरीज कांस्टेंट, दे विल गिव यू अमाउंट ऑफ प्रेशर, दे विल आस्क यू अबाउट द सॉल्युबिलिटी, समटाइम्स दे विल गिव यू दिस एंड दिस, दे विल आस्क अबाउट द प्रेशर, ठीक है? अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? KH का यूनिट। तो KH इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर, एम आई राइट? सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर लीटर। आपको याद है मोल्स पर लीटर और किसका यूनिट है? मोल्स पर लीटर और किसका यूनिट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या है वो? 11th स्टैंडर्ड में किया है, चैप्टर नंबर 2 कंसंट्रेशन पार्ट में। व्हाट इट इज? मास नहीं बेटा, और कुछ, थोड़ा और आगे बढ़ो। मिस वो नाम याद नहीं आ रहा है। इट इज मोलैरिटी। याद आ गया? मोलैरिटी, नंबर हाँ ऑफ मिस, मोल्स ऑफ हाँ वही। सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. Yes, yes. Molarity. Correct. So this is nothing but the unit of molarity. और प्रेशर का यूनिट क्या रहता है? बार। तो यूनिट क्या आ गया इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज, ठीक है? पर लीटर पर बार, दिस इज द यूनिट, करेक्ट? तो दिस इज अबाउट द थिंग। अगर मैंने प्रेशर 1 बार लिया, 1 बार ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इफ द प्रेशर इज 1 बार, so S is equals to KH, ठीक है? So that time it is called as overall pressure is 1 bar. वैसे इतना कंडीशन ये नहीं देते हैं, 1 प्रेशर वाला लेते नहीं है जनरली, बट इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट। ये समझ आ गया सबको हेनरीज लॉ? वापस से मैं बोलती हूँ, व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरी वाज द पर्सन who has demonstrated the experiment by using carbonated soft drink. What he has done, in 2 bottles he has taken carbonated soft drink, एक को बहुत अच्छे से सील किया, सेकंड वाले को ओपन रखा। So what was his observation? The amount of gas in this beaker was more than this. ठीक है? This is because pressure. So what he has concluded? Solubility is directly proportional to the pressure. अब मुझे proportionality का साइन निकालना है. What I will do? I will write down KH. KH stands for proportionality constant, or it is also called as Henry's constant. ठीक है? अब KH का यूनिट क्या है? आपको इसमें पूछ सकते हैं MCQs में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH? हेनरीज कांस्टेंट। सो इट इज मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय बार। अभी इसका ना एक और फॉर्मूला है जो JEE और नीट में यूज होता है, यहाँ पर इन लोगों ने दिया नहीं है, बट आप लिख के रखना। S is equals to KH into X. What is this X? X is called as mole ratio. Mole fraction. Mole fraction. So S is called as mole fraction. ठीक है? What is mole fraction? x1 is equals to n1 upon n1 plus n2 and x2 is equals to n2 upon n1 plus n2. याद आ गया? हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था 11th में, समझा बच्चों? Yes, or no? miss. सबको हेनरीज लॉ अच्छे से समझ में आ गया? Yes, yes. पक्का? चलो Yes. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मिस वो ये वाला अलग जो अलग है, गैस के लिए दूसरा दूसरा होगा ना?
क्या बेटा? ये एक्स पूछ रहे हो? नहीं मिस, वो हेनरीज कांस्टेंट। नहीं, हेनरीज कांस्टेंट, हाँ हाँ, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग गैस के लिए अलग सोर्सेज होगा। दे विल प्रोवाइडेड टू, यस यस, एंड दे विल प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, अब देखो ये हो गया हेनरीज लॉ, लेकिन देयर आर ओके सम एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, 2 फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको, ये लिख के रखना है, याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। S is equals to KH into P and also S is equals to KH into X। ये ना नीट और JEE में बहुत है क्वेश्चन, भर भर के हैं। तो X is nothing but मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन कौन सी गैसेस देती हैं पता है? एक तो अमोनिया गैस एंड दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दे आर नॉट ओबेइंग द हेनरीज लॉ। कोई बताएगा क्यों ऐसे? Why they are not obeying Henry's law? Any idea? सोचो जरा, देखो मैं भी आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये बीकर ले लिया, इसके अंदर वाटर ले लिया, फिर आई हैव टेकन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको कंप्रेस कर दिया, इसमें डिसॉल्व कर दिया और सील कर दिया। फिर जब मैं ओपन करूंगी तो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रह गया था वो बाहर निकल जाता है। तो ये हेनरीज लॉ कैसे डिसोबे कर रहे हैं? थोड़ा सोचो। वो रिएक्ट हो जाएगा ना। मिस इस केस में वो पूरा बाहर निकल जाता होगा। नहीं बेटा, पूरा बाहर नहीं निकलता, पूरा डिसॉल्व हो जाता है। समझा? मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, मैक्सिमम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, उसको वाटर से बहुत प्यार है। तो व्हाट हैपेंस? यस, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? अमोनियम गैस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयंस, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो ये कौन से स्टेट में हो जाता है? ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट। तो उसका बाहर निकलना तो काफी मुश्किल हो गया। समझ रहे हो बात को? वैसे ही मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इफ आई एम गोइंग टू डिसॉल्व दिस, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज इन द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड कैसे उड़ेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो बाहर निकलता है ना एफरवेसेंस, दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ gases, that is carbon dioxide present into that। आया समझ में सबको अच्छे से ये पार्ट? Yes. पक्का? शुड आई प्रोसीड? अच्छा मिस, मतलब वो एकदम अच्छे आराम से से। डिसॉल्व होता है, इसके लिए उड़ता नहीं है ना। हाँ, यस यस, हेनरीज ने क्या बोला था कि अगर गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर हटा दिया तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ से ढक्कन हटाया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर बाहर निकलनी चाहिए, बट नहीं निकलती है। अमोनिया भी बाहर निकलना चाहिए पर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट almost completely with the water to form carbonic acid, and this carbonic acid is in the liquid state, so it is not possible for this to escape very easily. Similarly, ammonia reacts with water to form ammonium hydroxide। करेक्ट? तो ये भी बाहर इजीली नहीं निकलता, जो एक्सेस अमाउंट होता है ना बच्चों, वही बाहर निकलता है। आया समझ में सबको अच्छे से? अभी ना हेनरीज ने एक और छोटी सी चीज बताई थी, मैं बता देती हूँ, आपकी बुक में नहीं है बट इट इज देयर इन द नीट एंड JEE। व्हाट ही हैज आल्सो ऑब्जर्व कि अगर मेरे पास कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, कार्बोनेटेड मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है सपोज एंड वाटर है, इट इज फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। अगर बाहर से मैं कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करूं, बाहर से मैं नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करूं, व्हेन आई एम एडिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट, what is the difference between volatile substance and non volatile substance? I'll give you 2 example। yes yes, suppose I will give you oil and I will give you perfume, सबसे फास्ट कौन उड़ जाएगा? बोलो। perfume क्यों उड़ेगा? because it is highly volatile in nature। Volatile. people say chemistry is volatile in subject। volatile means it will evaporate, you will study, you will forget, that is called as volatile। ठीक है? so from the external sources I am going to add non volatile solute। ये क्या होता है पता है? that time solubility of the gases into the liquid decreases। ये एक बार नीट में 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। if the non volatile solute is added from the external sources into the carbonated drink, what will happen to the solubility? it will increases, decreases or remain same? it will decrease। देखो ना, अगर अपने पास कोका कोला है, ठीक है, उसके अंदर गैस है, रूम टेम्परेचर पे मैंने छोड़ दिया, गैसेस विल एस्केप। बट अगर मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया, नोटिस किया है और ज्यादा एफरवेसेंस आता है? किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी? इवन सोडा बॉटल, इफ यू ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, नमक जब भी उसके अंदर डाल देते हैं तो more amount of gases will come out, more amount of effervescence you can see। so that indicates that when you're going to add the solute from the external sources,
the solubility of the gases into the liquid decreases. I hope आपको सबको समझ आ गया. Any questions till now? पक्का? तू कब आ रही हो? तंबाकू टेम्परेचर क्या होगा? तंबाकू खाए तू गंदा मेघा मां बहिरो कॉपी करे. मेघा आप लेक्चर में हो, मैं सबको ना म्यूट ऑल कर देती हूँ. Any questions? किसी को कुछ पूछना है? नो मिस. ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े. अभी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. इफ आई एम वेरी फास्ट प्लीज लेट मी नो. तो आज हमने क्या देखा बच्चों? अभी तक हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर onto the solubility of solid into the liquid. फटाक से बताओ, will the pressure affect the solubility of solid into the liquid? Yes or no? Quick answer. No. No. Very good. चलो next question. When the gases are getting dissolved into the liquid, will it affect? Will the Yes. pressure Yes. affect? Very good. Yes. Okay, what is Henry's law? What is Henry's law? What is Henry's law? Solubility of a gas Solubility is directly proportional to pressure. Directly to proportional. pressure. Perfect. ठीक है. What will happen if the external sources, say we are going to add some non-volatile solute into the carbonated soft drink? What will happen? Solubility will increase. Solubility will decrease. ये एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे भी कर सकते हो. टेम्परेचर. अच्छा, अभी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि if the temperature increases, what will happen to the solubility? चलो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो what will happen to the solubility? कन्हैया ने ये क्वेश्चन पूछा था. सॉलिबिलिटी बढ़ेगा कैसे रे? थोड़ा सोच के बोलो. टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ मैं मेरे सॉफ्ट ड्रिंक को हीट कर रही हूँ, तो गैसेस उसमें एब्जॉर्ब होगी कि निकल जाएगी बाहर? Decrease. It will decrease. मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस वो उड़ जाएगा. उड़ जाएगा. समझा? तो थोड़ा ना कैसे होता है, आप लोग को समझ में आता है कि व्हाट आंसर यू शुड गिव, पर हम लोग क्या करते हैं कभी कभार इंक्रीज की जगह डिक्रीज वर्ड बोलते हैं, डिक्रीज की जगह इंक्रीज वर्ड बोलते हैं. तो बहुत ध्यान से समझ के आंसर करें. हेनरीज लॉ आया ना तो सीधे कोका कोला याद करने का कि क्या होता है उसमें. इट हैज अ सॉफ्ट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. इफ आई एम गोइंग टू कीप इट इन द फ्रीजर, गैसेस आर कंडेंस्ड, तो उसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा. मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, बॉटल ओपन करके जो गैसेस थी वो उड़ गई, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, जो बची कुची गैस थी वो भी उड़ गई. ये सब है हेनरीज लॉ. समझा? So if the temperature increases, solubility decreases. So you're not supposed to increase the temperature of your cold drink. इतना सबको क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, चलो अभी हम लोग Yes. जो पढ़ेंगे ना वो राउल्स एंड ऑल दैट, उसमें आप लोगों को थोड़ा नोटबुक वगैरह लगेगा. ठीक है, तो नोटबुक के साथ जरा बैठो, नोटबुक और पेन के साथ, और एक प्रॉपर अच्छा सा नोटबुक बनाओ जिसमें आप सारे नोट्स लिखो. क्योंकि जो पार्ट लिखने वाले नहीं है वो मैं नहीं दूंगी, बट जो लिखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स है, दैट यू आर सपोज टू राइट. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी वेपर प्रेशर of solution. Okay, first of all, what is vapor pressure? What do you mean by vapor? What do you mean by vapor? एयर में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं. मिस वो लिक्विड का गैसियस. Evaporated water molecule. नहीं, यश ने क्या बोला? Small drops of water in. मिस लिक्विड का गैसियस स्टेट. Very good. The gaseous state of any substance. वही बोला. कोई भी substance का gaseous state है. Perfect बोला यश ने. Gaseous state का any substance which is showing a gaseous state, that is called as vapor. जैसे water है. Water का gaseous state is called as water vapor. Oil है. Oil का gaseous state is called as oil vapor. समझा? तो don't get confused. Now what is happening? Suppose I am having a beaker. In this I have some liquid. Suppose water ले लिया. ठीक है? तो वाटर एज अ टेंडेंसी टू एस्केप, तो ये क्या हो गया? इसका वेपर प्रेशर हो गया. वाटर इज हैविंग अ टेंडेंसी टू एस्केप, तो दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. वो बहुत ऐसे फोर्स करके, आपने अगर पानी को हीट भी नहीं किया और 5-10 दिन के लिए रख दिया तो वो उड़ जाएगा ना. ऐसा थोड़ी ना है कि उसके लिए हम लोगों को हीट ही करना पड़े, ऐसा नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. जैसे अभी मैंने बोला परफ्यूम, या मैंने लिखा यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3.
ठीक है, जो नेल पेंट रिमूवर है उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना बच्चों, क्योंकि बॉटल ओपन किया वैसे वो पूरा उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी इसको प्रूव करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी वन लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज राउल्स लॉ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट टर्न माय पेज। स्पीड इज ओके, सबको समझ गया अच्छे से बच्चों? Yes. ओके, ठीक है। Okay, now what we are going to study over here is Raoult's law. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Raoult's law, ठीक है। What Raoult said, he said that, अभी देखो हम क्या कंसिडर करेंगे, x1 and x2 are considered as mole fraction of, अभी 1 को हम हमेशा क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, याद आ गया, एंड सल्यूट 2 को क्या बोलते हैं, सल्यूट। तो ये याद रखो, 1 इज फॉर सॉल्वेंट, कुछ लोग यहाँ पर ए भी यूज करते हैं, एंड 2 इज ऑलवेज फॉर सल्यूट, कुछ लोग बी भी यूज करते हैं, कुछ किताबों में ए और बी भी लिखा हुआ होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। x1 and x2, x1 1 stands for solvent, 2 stands for solute, A stands for solvent, B stands for solute। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट कंसिडर x1 and x2 is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर दैट आई एम राइटिंग P1 and P2 are nothing but partial pressure of solute and solvent respectively, sorry, solvent and solute respectively। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर P1 नॉट and P2 नॉट। तो जो नॉट लगाते हो ना बच्चों, इट इंडिकेट्स दैट द प्योर सल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। जैसे नॉट वर्ड आपने देखा, आप क्या बोल दोगे, इट इज फॉर प्योर सल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। तो सपोज मैंने 2 सल्यूट लिया यहाँ पर, सल्यूट A1 एंड सल्यूट A2, दोनों भी प्योर स्टेट में है, so it is partial pressure of your solute A1 and partial pressure of solute A2। ये यहाँ तक सबको समझा कि नहीं, पहले इतना बोलो। Again I am repeating, let us consider x1 and x2 are the mole fractions of solvent and solute respectively, P1 and P2 are partial pressures of solvent and solute respectively, and if I am going to consider a binary solution, binary solution मतलब एक सोल्यूशन के अंदर 2 अलग अलग टाइप के सोल्यूट है, मतलब मैंने उसके अंदर NaCl भी डाल दिया और मैंने उसके अंदर सपोज अल्कोहल भी डाल दिया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी सोल्यूशन, मींस यू आर हैविंग 2 सोल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 सॉल्वेंट। तो एक सोल्यूट का जो प्रेशर है वो P1 नॉट है, दूसरे सोल्यूट का जो प्रेशर है वो P2 नॉट है। ठीक है, सो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट सेड दैट, देखो P1 is equals to P1 naught into x1 and P2 is equals to P2 naught into x2। बोलो क्या समझ आ गया? He said that the product of partial pressure of the solute is nothing but partial pressure of the solution। ठीक है, so what is the law? The law states that partial pressure of any volatile component, अभी मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ उसको, my component is volatile, is equal to the vapor pressure of pure component, बराबर है, ये pure बोला ना, pure component multiplied by its mole fraction। वापस से बोलती हूँ, partial pressure of any volatile component, अभी बराबर है ना, partial pressure की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें उड़ने की तो ताकत होनी चाहिए, it should be volatile, correct? So it states that, ध्यान से सुनो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। The law states that partial pressure of any volatile component is equal to vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है। यहाँ पे भी देखो, partial pressure of any component is equal to the product, ऐसे product भी बोल सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, vapor pressure of pure component and its mole fraction। This is called as Raoult's law। तो अगर मुझे total vapor pressure लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, P is equals to P1 plus P2, ये हो गया total vapor pressure of the solution। इतना क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? 100%? किसी को कुछ डाउट है? एक बार देख लो अच्छे से।
ये याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये याद रखोगे, ये भी फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। अब हम क्या Ma'am, can you करेंगे, repeat? यस यस Ma'am, can you repeat what is binary solution? yes, what is binary solution? Suppose I have a beaker. In this I will take NaCl and water, so this is my normal solution. Along with this I am going to add one more solute. Suppose I am going to take over here ethanol, तो ये solution क्या बन गया? It is called as binary solution. Binary, by means two, ठीक है, so you are having two solutes present in the same solvent. It is called as binary solution. तो हो सकता है ना कि एक ज्यादा वोलाटाइल हो, एक कम वोलाटाइल हो, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का डिसोल्यूशन अलग अलग है, so that is what is called as binary solution. So what was Raoult's law? The law states that partial pressure of any component is equal to vapor pressure of the pure component. Pure कैसे पता चला, ये देखो नॉट लिखा है ना, pure component multiplied by its mole fraction. यहाँ पे भी सेम है, तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे बच्चों? इट इज P is equals to P1 plus P2. यहाँ तक सबको समझा कि नहीं, पहले इतना बोलो। Yes, Is it yes, very miss, clear? yes. Okay. Yes. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग 1 into 2, so P is equals to P1 naught into x1 plus P2 naught into x2. क्या किया बोलो? Just added, ठीक है, but from the definition of mole fraction, do you remember x1 plus x2 is equals to 1? याद है, ये हम लोगों ने किया था 11th में, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते थे और दोनों का ऐड करके आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 आना चाहिए। कितने बार अपने को देखो 0.98 मिलता था, कितने बार 0.93 मिलता था। So if x1 and x2 is equals to 1, this is a definition of mole fraction. Means mole fraction of solute and solvent should be equal to approximately 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ऐसे कर सकती हूँ, x1 is equals to 1 minus x2. Can I do this? Suppose I am going to consider this equation. अच्छा चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. कैन आई सब्स्टिट्यूट 4 into 3? आ रहा है सबको समझ में? See what I did, P1 is equals to P1 naught into x1 and P2 is equals to P2 naught into x2. This is my equation number 1. ठीक है, then P is equals to P1 plus P2. कितना क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसके जो 1 था इसको 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो P1 की जगह क्या लिखा, P1 naught into x1 प्लस इसकी जगह पर क्या लिखा, P2 naught into x2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन x1 plus x2 is equals to 1. So what is my x1? 1 minus x2. अब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना x1 की जगह पर, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. I will write down मतलब P is x1 के equals जाके to, हाँ x1 की जगह पर 1 minus x2 लिखने का. ठीक है, देखो बताती हूँ, P1 नॉट लिखा, x1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 minus x2. समझ रहे, 1 minus x2 प्लस P2 नॉट into x2. यहाँ तक किसको नहीं समझा ये मुझे बताओ सबसे पहले. यहाँ तक सबको क्लियर है? 1 2 3 4 इक्वेशंस देख लो एक बार. यस पक्का? ओके ठीक है, चलो ओके वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, P1 नॉट माइनस P1 नॉट into x2 प्लस P2 नॉट into x2. ये बराबर किया मैंने, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट into x2. ये वैसे का वैसे ही लिखा. अब आपको क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए, किसको कॉमन निकालना चाहिए? x2 करेक्ट करेक्ट. तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देती हूँ. ठीक है, मैं ये प्लस वाला पहले लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे. ये पहले लिखा माइनस P1 नॉट into x2 लिखा प्लस P1 नॉट लिखा. अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर x2 विल बी कॉमन, so it is P2 naught minus P1 naught plus P1 naught. This is the final equation for Raoult's law. ठीक है, अब क्या बोला पता है, the solutions which are obeying Raoult's law, the solutions which are obeying Raoult's law are called as ideal solution, and the solutions which do not obey Raoult's law
are called as non-ideal solution. समझा? आया सबको समझ में? मैम लास्ट लाइन रिपीट प्लीज. कौन सा वाला? ये आइडियल वाला? यस मैम. Okay, okay. What is ideal solution? अगर आपको पूछा कि what is ideal solution, so what you are going to comment? All the solutions which are obeying Raoult's law. Actually होता ही नहीं है ना, real life में ऐसे कोई ideal होता है क्या? It is not possible. जैसे हमारे पास ideal gas नहीं होती, वैसे ideal solution नहीं होता. ठीक है? So according to this law, the solutions which are obeying Raoult's law are called as ideal solution. But the solution which do not obey Raoult's law are called as non-ideal solution. ठीक है? तो जनरली हमारे पास सारे non-ideal solutions ही होते हैं. इतना सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस यस मैम. यहाँ तक किसी को इसको कोई रियल डाउट है? रियल भी पक्का? बोलते हैं ना? रियल भी बोल सकते हो. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अभी फटाफट से बुक में हेडिंग लिखो. अभी यहाँ से आपका लिखने का काम शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जो आप आपके बुक में लिखते भी जाओगे साथ में. ठीक है, चलो फटाफट से नोटबुक निकालो. राइट डाउन द हेडिंग राउल्स लॉ. मैं जैसे बोलूंगी वैसे लिखो. रेडी एवरीवन? इज इट ओके? यू कैन राइट ना? चलेगा ना? हेलो? यस. Yes. आप लोग ओके, आप लोग लिखोगे तो फिर अच्छे से समझ आएगा. जैसे मैं बोलूंगी वैसे लिखते जाओ. फास्ट फास्ट लिखो. हाँ, राइट डाउन राउल्स लॉ. पहले स्टेटमेंट लिखो. द लॉ स्टेट्स दैट the law states that partial pressure of any volatile component, please write down and take it seriously, क्योंकि आपको बाद में नोट्स वोट्स कुछ मिलने वाले हैं नहीं, और ये बुक्स के सब पेजेस है जिसका मैं पिक्चर नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कैसे भी मेस्ड अप करके लिखा है. तो आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाओ. ठीक है? The law states that partial vapor pressure of any volatile component or any volatile component of a solution is equal to कौन बताएगा मुझे? चलो, is equal to क्या आएगा स्टेटमेंट? is equal to बोलो, ये क्या है? P1 नॉट. Pure volatile solution. Pure component. Yes, vapor pressure of pure component. Very good. Vapor pressure of pure component. मैं लास्ट में सब क्वेश्चन पूछूंगी और सारे मुझे आंसर्स चैट बॉक्स में चाहिए. Is equal to the vapor Multiplied by pressure small of pure component. Very good. Multiplied by its mole fraction. Multiplied by its mole fraction. In the solution. Next line. Suppose the solution is binary. जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखो. Suppose the solution is binary having two volatile liquids A1 and A2. Suppose the solution is binary having two volatile liquids A1 and A2. Then अब ये चालू करो लिखना. Then x1 and x2 is equals to mole fractions of solute and solvent respectively. P1 and P2 is equals to partial pressure of solvent and solute respectively. पहले इतना लिखो, नीचे का मत लिखना, मैं बताती हूँ. ठीक है, पहले इतना लिखो. I hope you all are getting and you are fine with the writing part also. Yes. Yes, miss. Okay. आराम से समझ के लिखो, इतना ही लिखो. हाँ, P1 and P2 तक.
Done. X1 and X2 mole fraction of solvent and solute respectively. P1 and P2 are partial pressure of solvent and solute respectively. Done, ma'am. Done. Okay. Then write down P1 naught and P2 naught equal to P1 naught and P2 naught equal to vapor pressures of P1 naught and P2 naught equal to vapor pressures of pure liquid A1 and A2 respectively. P1 naught and P2 naught equal to vapor pressures of pure liquids A1 and A2 respectively. इतना लिख दिया. Then write down. Therefore, according to Raoult's law, ये statement लिखो. P1 is equals to P1 naught into X1 and P2 is equals to P2 naught into X2. और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना. समझ रहे हैं ना सबको? ये मैं होमवर्क देने वाली हूँ तुम लोगों को, हाँ, लिखने का और उसको पोस्ट करने का. I will tell you how. ठीक है, हो गया इतना. Then write down. According to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton, नाम सुना ना Dalton, Dalton's atomic theory. According वही है to क्या? Dalton's, yes, वही बंदा है. According to Dalton's law of partial pressure, ये लिखो अभी. P is equals to P1 plus P2. मतलब डाल्टन ने क्या बोला पता है? टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? P1 plus P2 होता है बस. According to Dalton's law of vapor pressure, P is equals to P1 plus P2. This is your equation number 2. अब आगे का तुम लोग मुझे बताओ क्या करेंगे? 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 1 को 2 में? 1 को 2 में. करेक्ट. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिखो. सब्स्टिट्यूटिंग 1 into 2. फिर इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा. इतना लिखो. Substituting 1 into 2. Then P is equals to P1 naught X1 plus P2 naught X2. मिस टेक्स्ट बुक में है नहीं? हाँ, टेक्स्ट बुक में है. तो टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है. लेक्चर क्यों बैठ रहे हो? लेक्चर ही मत बैठो, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो. सब कुछ है टेक्स्ट बुक में. यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंटरनेट पे भी मिलेगा. डोंट सिट फॉर द लेक्चर. कौन था ये? किसने पूछा ये क्वेश्चन? कौन था ये? मैं सिर्फ बोला है उसमें. हाँ तो है, तो टेक्स्ट बुक में सब कुछ है ना. मतलब नहीं लिखना है तुमको तो मत लिखो, बाकी के लोग लिख रहे हैं. तुम टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो. ढूंढते बैठना टेक्स्ट बुक में 3 घंटा. ठीक है. टेक्स्ट बुक में इतना प्रॉपर्ली ऐसे 1 2 सब करके नहीं दिया हुआ है. मैं बहुत आपको सिंपल करके दे रही हूँ. आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो. जिनको इंटरेस्ट है दे विल राइट. हो गया इतना लिख के बच्चों? Then write down from the definition of mole fraction, x1 plus x2 is equals to 1. Therefore, x1 is equals to 1 minus x2. This is your equation number 4. लिखा. अभी क्या करेंगे? Substituting 4 into 3 और उसके बाद नीचे का पूरा कॉपी करो इधर तक. Substituting 4 into 3 and then write down this whole part. Is it very clear for everyone? हो जाएगा तो write down done in the chat box. Okay. ठीक है. I think most of the people have completed. उसके नीचे लिखो statement. The solution which obeys Raoult's law are called as
Which solution? Ideal कैसे लिखोगे? हाँ, yes, right on. The solution which obeys Raoult's law over entire range of concentrations. The solution which obeys Raoult's law over entire range of concentrations are called as ideal solutions. ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको Ma'am, अच्छे can से you समझ आ repeat the गया. sentence? Yes, the solutions which obeys Raoult's law, the solution which obeys Raoult's law over entire range of concentrations, the solution which obeys Raoult's law over entire range of concentrations are called as ideal solutions. Are called as ideal solutions. Is it clear for everyone? अभी राउल्स लॉ का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, that we will do in the next lecture. And अभी मैं आपको कुछ questions पूछूंगी, उसके मुझे answers चाहिए. ठीक है, चलो सब लोग chat box में आ जाओ फटाफट. We have 5 minutes. Come to the chat box. Ready, everyone? Okay, first question. Give me the example of gases which do not obey Henry's law. लिखो chat box में. Give me the example of the gases which do not obey Henry's law. Okay, very good. Correct. Very good. शाबाश, सबका सही जवाब है. Good. चलो. According to Henry's law, solubility is directly proportional to. According to Henry's law, solubility is directly proportional to. Correct. Very good. What is the unit of solubility? What is the unit of solubility? ध्यान से क्वेश्चन सुनो. KH का नहीं पूछ रही हूँ. I'm asking what is the unit of solubility? Correct. Very good. केली ने perfect answer दे दिया. मैम आफ्टर lecture एक मिनट. Okay बच्चों, tomorrow there will be a lecture from 8 to 9:30 रात को. ठीक है, 8 to 9:30 will be your lecture tomorrow. Next question. चलो मोल पर लीटर हो गया सबका. Next question. As the temperature increases, solubility increases or decreases? As the temperature increases, solubility increases or decreases? Correct. ठीक है. Okay. Next question. Which solution is called as तो इंक्रीज होता है ना. solubility of gas की बात कर रहे हैं. अच्छा गैस. है ना? ओके. हाँ, कंफ्यूज मत हो जाओ. हम लोग जब solubility of solid into liquid की बात करते हैं तब वो इंक्रीज होता है. बट हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? solubility of gas into Henry's law पढ़ रहे हैं ना अभी. It is related with the Henry's law. So Henry has studied the solubility of gas into the liquid. समझा? हाँ मिस, फिर डिक्रीज. ओके. Okay. हाँ, फिर डिक्रीज हो जाएगा. Yes. According to Raoult's law, according to Raoult's law, what are ideal solutions? What are ideal solutions? बोलो. Okay. Which obeys the Raoult's law. ठीक है. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं अभी तुम लोगों को कि what is the unit of pressure? What is the unit of pressure? ठीक है. Correct. ठीक है. चलो, so now we will stop. Very good. I hope आपको सबको समझ आ गया ये लेक्चर अच्छे से. ठीक है. Tomorrow lecture will be at 8 PM, 8 to 9:30. ठीक है. Be present on time. ठीक है. चलो, we will meet tomorrow. Bye bye. सर मीटिंग एंड करती हूँ.
Okay, welcome sir. Bye bye. Bye बच्चों. I mean. Bye.